नमः श्री यतिराजाय विवेकानंद सूरये सच्चित् सुख स्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। সমাগত সুধীবৃন্দ, সকল ছাত্রছাত্রী এবং আমাদের সকল গুরুজনদেরকে আমি আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই। সবার প্রথমেই সংস্কৃতি তথা বিএসএসইআই বেলুরে তোমাদের সকলকে স্বাগত। বিএসএসইআই বেলুর বেশ কিছুদিন যাবত সার্চ টু রিসার্চ নামক একটি প্রোগ্রাম কন্ডাক্ট করে আসছে, যেখানে মূলত আমাদের উদ্দেশ্য এটাই, যারা আগামী দিনে রিসার্চার হতে চলেছে, গবেষণা করতে চলেছে, গবেষক হতে চলেছে, তারা যেন গবেষণার একটা দিশা খুঁজে পায়। সত্যি কথা বলতে আমরা সেই ক্লাস 12-এর পর যখন কলেজে আসি মনে হয় যেন পুকুর থেকে একটা সমুদ্রে আসলাম, আবার কলেজ থেকে যখন ইউনিভার্সিটিতে যাই মনে হয় যেন একটা মহাসমুদ্রে গেলাম। ঠিক সেরকম ভাবে আমাদের সামনে যখন নেটটা পাশ করার পর আমরা রিসার্চ করার কথা ভাবি, অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর হওয়ার স্বপ্ন দেখি, তখন আমরা কোথাও যেন খেই হারিয়ে ফেলি। এম এর পর নেটটা তো হলো, কিন্তু রিসার্চটা কোন পথে করব, কি করে ভাববো, ঠিক কোন টপিকের উপর রিসার্চ করা যেতে পারে, এরকম নানান বিষয় নিয়ে তাদের প্রশ্ন কৌতূহল থেকে যায়। হয়তো অনেক কষ্ট করে জেআরএফটা পেয়ে যায়, কিন্তু সেই জেআরএফটাকে কাজে লাগানোর জন্য প্রয়োজন একটা গবেষণায় সুযোগ পাওয়া। সেখানে সুযোগ হয়ে ওঠে না। কারণটা কি? সঠিক রিসার্চ প্রপোজাল লিখতে পারছে না, রিসার্চের থিম খুঁজে পাচ্ছে না। তো এরকম নানান অসুবিধাকে সামনে রেখে আমরা আমাদের এই উদ্যোগ সার্চ টু রিসার্চ শুরু করি, এবং সবার প্রথমেই আমাদের নিজেদের সাবজেক্ট, আমার সাবজেক্ট সংস্কৃতকে আমরা লক্ষ্য করি। এবং আমাদের এই সার্চ টু রিসার্চ আজকের এই দিনটা একটা অন্য মাত্রার, কারণ এই প্রথম কলকাতার কোনো একটি কলেজ আমাদের সঙ্গে যৌথভাবে আজকের এই ওয়েবিনারটা করছেন, এবং সেই ওয়েবিনারের মূল যে কাণ্ডারি, যার উদ্যোগে এই যৌথ উদ্যোগটা শুরু হয়েছে, সেই সুতপা ম্যাডামকে আমি আমার আন্তরিক ধন্যবাদ এবং শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আমাদের সঙ্গে এগিয়ে আসার জন্যে, ছাত্রছাত্রীদের জন্যে একসাথে বিএসএসইআই এর সাথে কাজ করার জন্যে। এতদিন যে কাজ আমরা একা করে যাচ্ছিলাম, এখন একজন সঙ্গী পেয়ে সত্যিই মনে হচ্ছে, ভালো লাগছে যে আমরা কিছু করতে পারছি ছাত্রছাত্রীদের জন্য। তো সুতপা ম্যাডামকে এবং যার হাত ধরে এটা হয়েছে অনন্ত মুখার্জি মহাশয়, দুজনকেই অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমি এখান থেকে। এবং আরো উল্লেখযোগ্য বিষয়, এতদিন কেবল একজন বক্তা আমাদের সঙ্গে থাকছেন, আজকে কিন্তু একজন মূল বক্তা হলেও আমাদের সঙ্গে রয়েছেন আমাদের চিফ গেস্ট প্রফেসর ডক্টর পি.কে. মহাদেবন মহাশয়। আমি পি.কে. মহাদেবন মহাশয়কে স্বাগত জানাচ্ছি বিএসএসইআই বেলুরে। পি.কে. মহাদেবন মহোদয়ः সুস্বাগতম বিএসএসইআই পক্ষতः সুস্বাগতম ব্যাহরামি। এবং আমাদের সঙ্গে আজকে আমাদের প্রধান বক্তা ডক্টর জয়প্রকাশ নারায়ণ স্যার আছেন। তার সম্পর্কে আমরা অবশ্যই বলবো। জয়প্রকাশ স্যারকেও বিএসএসইআই এর পক্ষতঃ সুস্বাগতম জানাচ্ছি। এবং আমাদের সঙ্গে আছেন আমাদের সকলের প্রিয় ডক্টর সুতপা রয় ম্যাডাম, যিনি জয়েন্ট কনভেনার এবং এইচওডি আমাদের সংস্কৃত ডিপার্টমেন্ট অফ সংস্কৃত, লেডি ব্রুবন কলেজ, কলকাতা। ধন্যবাদ, অনেক ধন্যবাদ। আমার বাড়িতে একটা খুব বিপর্যয় ঘটে গেছে, আমি অনন্তকে জানিয়েছিলাম, সেই জন্য আমি শুধু সঙ্গে আছি ভাই। এর পরের বার থেকে পরিপূর্ণভাবে উপস্থিত থাকবো। হ্যাঁ, তোমাকে অনেক ধন্যবাদ, স্যারদেরকে অনেক ধন্যবাদ। বেশ বেশ, থ্যাংক ইউ। এবার বলে রাখি একদম আমরা কি, আমাদের উদ্দেশ্য বিধেয় কি, সেটা আমরা মোটামুটি স্পষ্ট করে দিলাম। এবং আজকে
আমরা মূলত যেটা করতে চাইছি, এই অনুষ্ঠান যেন শুধু ওই মুষ্টিবদ্ধ একটা সংস্থার মধ্যে সীমাবদ্ধ না থাকে। সে কারণেই আজকে আমাদের এই অনুষ্ঠানের ওয়েলকাম অ্যাড্রেস করবে রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের MA প্রথম বর্ষের সংস্কৃত বিভাগের ছাত্রী বহ্নি দাস অধিকারী। আমি বহ্নি দাসকে ওয়েলকাম অ্যাড্রেস করতে বলবো। বহ্নি। হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে। শুভ সন্ধ্যা। অহম বহ্নিশ্রী দাস অধিকারী, রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়স্য আচার্য প্রথম বর্ষস্য ছাত্রা। আন্তর্জালিক সংযোগেষু কাচিৎ সমস্যা अस्ति, अतः क्षमा प्रार्थना पुरस्सरं कैमेरा न सञ्चालन एव भाषे। नमो नमः। उपस्थितेभ्यः सर्वेभ्यः मत्पक्षतः BSS EI सर्च टू रिसर्च पक्षतः च प्रणामान् हार्दं कार्तज्ञं च विनिवेदयामि। इह सभायां समागमनाय अद्य अस्माकं सत्रस्य विषयः भवति वक्रोक्ति इति काव्यविधायकं साहित्यसम्प्रदाये च सम्भविताः शोधविषयाः। तत्र खलु अस्माकं सभायां देदीप्यमानाः सन्ति भारतस्य प्रविधेभ्यः प्रान्तेभ्यः समागताः। विद्यारूपस्य पूर्णचन्द्रिकावितानस्य किरणैः शोधवर्तकाः दिक्पालाः धीमन्तः धीमत्तः उद्धापकाः उद्धापिकाः च। तत्र अस्यां सभायां विशिष्टातिथिपदं सभापतिपदं च स्वीकुर्वन्ति वरिष्ठ अध्यापकः PK माधवन महाभागः विश्व संस्कृत प्रतिष्ठान नामके विश्वविख्याते संस्कृत प्रचार प्रतिष्ठाने अध्यक्ष पदवीम् अलङ्कुर्वतः श्रीमतः नाम कार्यपद्धतिश्च अस्माभिः सर्वैः विदितपूर्वमेव। अपि च केरलस्थे करालमन्ना प्रदेशे वेदगुरुकुले कुलपतिचरस्य भूमिकां प्राप्तवतः महाभागस्य ज्ञानगौरवं स्वभावमौनत्यं प्रसन्नगम्भीरं शास्त्रपाठवत्वं च समग्रे भारतवर्षे अगाधं प्रसरति। तस्मै अत्र सुस्वागतम्। प्रणामं हार्दिकीं शुभेच्छाम् अभिनन्दनं च विनिवेदयामि। अपि च सत्रे उपस्थिता अस्ति श्रद्धेया अध्यापिका डॉक्टर श्रुतपा रॉय महाभागा, प्रधान विभागीय लेडी ब्रेबोर्न कॉलेज कलिकातास्था। बंगे तस्याः अध्यापनपटुतां छात्रप्रीतिं च सर्वे जानन्ति। तस्यै अपि सुस्वागतम्। अद्यतनस्य सत्रस्य मुख्य वक्तारूपेण साहित्यकार्य मध्याह्नचन्द्र भास्कर इव विलसति जमिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालयस्य संस्कृत विभागस्य विभागीय प्रधानः तथा वरिष्ठाध्यापकः जयप्रकाश नारायण वर्यः। अयं साहित्य नारायणः दिल्ली विश्वविद्यालयतः तस्य शोधकार्यं पञ्चाधिक-द्विसहस्रतमे वर्षे सम्पादितवान्। मिथिला इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट इतः महोदयस्य विद्यावाचस्पति इति उपाध्यायी शोधकार्यं प्रचलति। NCERT DESSEH इतः जूनियर प्रोजेक्ट फेलो रूपेणापि तस्य योगदानमस्ति। राष्ट्रीय संस्कृत संस्थाने अपि आचार्यरूपेण महोदयः प्रभिन्ने समये विविधानि कार्याणि परिचालितवान्। प्रायः 10 छात्राः महाभागस्य समीपे शोधकार्यरता, केचन च समापिताः। बहुषु शोधपत्रिकासु तस्य निबन्धाः प्रबन्धाः इत्यादयः प्रकाशिताः। AIOC पुणे इति संगठनस्य आजीवनं सदस्यपदवीम् अलङ्कुर्वतः शोभमानः आचार्यः बहूनां पत्रपत्रिकाणां सम्पादकरूपेणापि कार्याणि प्राचालयत्। भवन्तः सर्वे अन्त्यं यावत् सत्रे तिष्ठन्तु, ज्ञानसुधारसं च पिबन्तु। नमो नमः।
धन्यवादः। इदानीं अनुरुन्धे PK महादेवन महाशयः अस्माकं कृते किञ्चित् आशीर्वचनं दीयते चेत् सम्यक् भवति। PK महादेवन महोदयः। वंदे कवीन्द्रवक्त्रेन्दु लास्यमन्दिरनर्तकीं देवीं सूक्तिपरिस्पन्दसुन्दराभिनयोज्ज्वलाम्। नमस्सभायै उपस्थिताः समादरणीयाः आचार्याः डॉक्टर जयप्रकाश नारायण महाशयाः, आचार्य सुतपाराय महाशयाः, अस्य च विशिष्टस्य कार्यक्रमस्य समायोजने बद्धश्रद्धाः कृतभूरि परिश्रमाः अनंत मुखर्जी प्रभृतयः अस्य पदाधिकारिणः कार्यकर्तारः उपस्थिताः आचार्याः शोधच्छात्राः भ्रातरः भगिन्यः सर्वेभ्योऽपि सादराः प्रणामाः। महदिदम् इत्येव आदौ वक्तव्यम् अस्ति। अयं कार्यक्रमः सर्वथा श्लाघनीयः। शोधसम्बद्धाः विविधाः विषयाः सन्ति। इदानीम् अपि संस्कृतसाहित्यसम्बद्धाः संस्कृतवाङ्मयसम्बद्धाः, तथापि कं विषयम् आश्रित्य केन वा मार्गेण कया वा रीत्या अग्रे गन्तव्यम् इति विषये प्रायेण युवकाः संशयग्रस्ताः दृश्यन्ते कदाचित्। तेषां मार्गदर्शनम् अवश्यं करणीयम् अस्ति। ये विषयाः सन्ति सामुख्ये, तेषु अनुप्रवेशः कथं वा करणीयः इति विचिन्तनं समुचितमेव। साहित्यसम्बद्धाः सन्ति, शास्त्रसम्बद्धाः सन्ति, वेदविज्ञानसम्बद्धाः सन्ति विविधाः विषयाः। तेषु विषयेषु शोधकार्यार्थं ये प्रवेशम् इच्छन्ति तेषां कृते अत्यन्तं सोपकारकं भविष्यति अस्माकम् इदं कार्यम् इति मन्ये। अद्यतनविषयः वक्रोक्ति इति, स्कोप ऑफ रिसर्च इन वक्रोक्ति। साहित्यसम्बद्धोऽयं विषयः। वक्रोक्तिः इति श्रुतमात्र एव कुन्तकाचार्यस्य वक्रोक्तिजीवितस्य च स्मरणं ज्ञायत एव। यतः तत्र भवता वक्रोक्तिः इति विषयः सगौरवं पठितम्। प्रायः सर्वेषाम् अन्येषाम् अलङ्कारशास्त्रसम्बद्धानां विषयाणां वक्रोक्त्या सह कः सम्बन्धः इति, अथवा ते विषयाः कथं वक्रोक्तौ अन्तर्भवन्ति इति सम्यक् प्रतिपादितं दृश्यते तत्र भवता। ततः पूर्वमपि वक्रोक्तिः अलङ्कारशास्त्रे चर्चा विषयत्वेन उपस्थापितः अस्ति एव। पूर्विकैः आचार्यैः पूर्वाचार्यैः भामह दण्डी प्रभृतिभिः वक्रोक्ति परामृष्टः दृश्यते एव। वक्रोक्तिः सैषा सर्वत्र वक्रोक्तिः अनयार्थो विभाव्यते यत्नोस्यं कविना कार्यः कोऽलङ्कारो अनया विना इत्यादि परामर्शाः तत्र तत्र दृश्यन्ते एव। वक्राविधेय शब्दोक्तिरिष्टा वाचामलङ्कृतिः इति च। एवं वक्रोक्ति विषये सूचना
पूर्वाचार्याणां ग्रन्थेषु अस्ति एव। तदनुसारेण ततोपि अग्रे गत्वा तत्र भवता कुन्तकाचार्येण वक्रोक्तिम् अधिकृत्य चर्चा समारब्धा। प्रायः ध्वनिकारादिभिः ये सिद्धान्ताः उपस्थापिताः सन्ति तेषां मार्गम् अनुसृत्यैव कुन्तकाचार्येणापि अग्रे गतम्, परन्तु सर्वं वक्रोक्तौ अन्तर्भवति इति तस्य सिद्धान्तः। अत एव आचार्यस्य मते वक्रोक्तिरेव काव्यजीवितं, काव्यस्य आत्मा इति वा वदामः। तादृशः अयं विषयः अतीव विस्तृतः वर्तते। तस्य आरम्भः, चर्चा, आचार्यस्य कुन्तकस्य तत्र योगदानं, नूतने वाङ्मये तस्य प्रयोगः, अन्ये भाषा निबद्धेषु साहित्येषु वक्रोक्ति चर्चा, समाना चर्चा कथं प्रवर्तते इत्यादयो विषयाः अपि विचिन्तनीयाः सन्ति इति मन्ये। एतस्मिन् कार्यक्रमे उपस्थिताः आचार्यवर्याः विस्तरेण तादृशविषयाणां चर्चां करिष्यत्येव इति मन्ये। अतः आमुखरूपेण सामान्येन एतावन्मात्रं वक्तुम् इच्छामि। एतदर्थम् अस्य कार्यक्रमस्य समायोजनार्थं ये युवकाः अत्युत्साहपूर्वम् आगताः सन्ति ते सर्वे श्लाघनीयाः, अभिनन्दनीयाः। सर्वथा भवताम् अयं परिश्रमः सफलः भवतु, इयं चर्चा अग्रे गच्छतु इति प्रार्थनापूर्वं साभिनन्दनं सधन्यवादं विरमामि। प्रणामाः। नमो नमः। धन्यवादः महोदयः। इदानीं समययापनं न करोमि, साक्षात् विषये प्रवेशः भवतु इति अस्माकम् आशा। अतः डॉक्टर जयप्रकाश महोदयः आरम्भं क्रियते। महोदयः, जयप्रकाश महोदय। जगत त्रितय वैचित्र्य चित्र कर्म विधायिनम शिवम परिस्पंद मात्रोपकरणम नुमः। तीनों लोकों के चित्रतापूर्ण चित्रकर्म का निर्माण करने वाले तथा शक्ति के परिस्पंद मात्र उपकरण वाले शिव को हम नमस्कार करते हैं। सम्माननीय आज के इस संगोष्ठी के मुख्य अतिथि महोदय, सभापति महोदय, प्रोफेसर पीके माधवन, प्रेसिडेंट विश्व संस्कृत प्रतिष्ठान, इस कार्यक्रम के संयोजक मंडल में डॉक्टर सुतापा राय महोदया, एचओडी डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत, लेडी ब्राबर्न कॉलेज कलकत्ता, संयोजक अनंत मुखर्जी महोदय, अमित जी संचालक महोदय एवं इस संगोष्ठी में उपस्थित सभी विद्वत वृंद, सुधी शोध छात्र एवं जिज्ञासु छात्र, मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि BSSEI रिसर्च टू रिसर्च संस्था और डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत, ब्राबर्न कॉलेज कलकत्ता के संयुक्त तत्वावधान में आज का यह एक दिवसीय वेबिनार का आयोजन किया गया है। यह मेरा सौभाग्य है कि आज इसमें मुख्य अतिथि के रूप में हमारे सम्माननीय पीके माधवन महोदय उपस्थित हैं। मेरे विषय को बहुत ही सरल बनाने के लिए शुरू में ही उन्होंने भूमिका के रूप में वक्रोक्ति के महत्वपूर्ण चीजों को बतला दिया है, तो मैं समझता हूं कि वह
हमारे व्याख्यान के लिए बहुत आधार हो गया और जो श्रोतागण हैं उनके लिए बहुत ही लाभदायक हो जाएगा, एक पिष्ट आमुख के रूप में, जैसा कि आपने कहा भी। बहुत ही सरल भाषा में, संक्षेप में आपने महत्वपूर्ण बातों को रख दी है वक्रोक्ति की। मुझे कहा गया था कि आप हिंदी में ही बोलेंगे, मैं तो संस्कृत में बोलने वाला था, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, आपको हिंदी में ही बोलने हैं, तो इसीलिए हिंदी में ही मैं अपने व्याख्यान को आगे बढ़ाऊंगा। सबसे पहले जो आपका विषय है कि शोध, रिसर्च टू रिसर्च, शोध कार्य के आयाम जो साहित्य के क्षेत्र में होते हैं, उसमें जो मुख्य बिंदु आज लिया गया है वक्रोक्ति पर। तो वक्रोक्ति पर शोध कार्य करने से पहले, शोध के विषय में जानकारी, शोध के क्षेत्र, इनके शोध के विषय को ढूंढने से पहले हम वक्रोक्ति के बारे में जानना चाहेंगे कि वक्रोक्ति होता क्या है, क्या होती है वक्रोक्ति काव्य में, और वक्रोक्ति जो है वह क्यों महत्वपूर्ण है, किन किन रूपों में महत्वपूर्ण है, काव्य में या काव्य शास्त्र में, या कहाँ कहाँ यह वक्रोक्ति जो है उपयोग में देखे जाते हैं, सुने जाते हैं। तो यह जो वक्रोक्ति है इस कई रूपों में हमारे काव्य में देखने को मिलते हैं। हम देखते हैं कि यह जो काव्य सिद्धांत के रूप में आया, पहले उसकी भूमिका मैं बता दूं कि जिस प्रकार के शब्द और अर्थ जो है काव्य के शरीर माने गए, शब्दार्थो काव्यम, काव्य के शरीर, तो शरीर हो गए तो उनके विभिन्न अंग होते हैं। तो अंग में भी हाथ पैर आंख कान नाक जिस प्रकार शरीर में है, तो काव्य में भी बहुत सारे ऐसे तत्व हैं जो अंग के रूप में उपस्थित हैं, जैसे रस है, रीति है, वक्रोक्ति, ध्वनि और चित्त इत्यादि बहुत सारे ऐसे अंग हैं। तो शरीर हो गए, अंग हो गए। अब उसमें आत्मा की बात आती है कि आत्मा का मतलब प्रधान तत्व। काव्य में प्रधान तत्व क्या हो, एक कोई लीडर होना चाहिए। किसी भी कार्य के संचालन के लिए एक लीडर की आवश्यकता होती है, वैसे ही काव्य में एक प्रमुख तत्व होंगे और जो अंगी कहलाएंगे, और उसके साथ में अन्य तत्व जो है अंग के रूप में रहेंगे। तो इसी के खोज में 6 सिद्धांत आ गए काव्य की आत्मा के रूप में, जिसमें रस, रीति, वक्रोक्ति, ध्वनि, औचित्य इत्यादि जो है अलंकार, ये 6 संप्रदाय चल पड़े। इन 6 संप्रदायों में वक्रोक्ति संप्रदाय भी एक महत्वपूर्ण संप्रदाय के रूप में बाद में स्थापित होता है। यह जो संप्रदाय है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, इस पर थोड़े से हम ध्यान दिलाना चाहेंगे कि काव्य में जब रस भी है, अलंकार भी हैं, रीति है, ध्वनि है, औचित्य है, तो वक्रोक्ति की जरूरत क्यों पड़ी, क्या आवश्यकता थी वक्रोक्ति की। तो इस पर हम ये बताना चाहेंगे कि काव्य में एक प्रकार की होड़ सी चल पड़ी थी, जिसमें कि काव्य हम देखते हैं कि 2 विधाएं होती हैं, एक है भाव पक्ष प्रधान, एक होता है कला पक्ष प्रधान। तो जो कालिदास के काव्य हैं या भावभूति के काव्य हैं, उन सबके काव्य में भाव की प्रधानता है। उसके बाद देखते हैं कि भारवी से जब प्रारंभ है तो कला पक्ष की प्रधानता होने लग गई। इसीलिए भारवी ने 15वें सर को चित्रकाव्य बनाया और एक ही 9 अक्षर से पूरा श्लोक बना डाला। 9 नुन्नो नुन्नो नो वाला जो श्लोक है आप लोग जानते होंगे। तो यह श्लोक बड़ा महत्वपूर्ण हुआ और एक तरह से कलात्मकता हावी होने लगी काव्य में, और कवि जो है वह अपने बाह्य चमत्कार, अलंकार या शब्दों की रचना से अपने काव्य को चमत्कृत करने की एक परंपरा बना डाली। इसको देखते हुए महाकवि माघ ने भी इससे आगे बढ़ करके काव्य के श्रेणी में 19वां सर्ग जो शिशुपाल वधम है, वहां पर भी देखते हैं कि चित्र काव्य के रूप में उन्होंने किया। तो वहां पर यह भारवी से आगे बढ़ करके 1 अक्षर से 2 अक्षर से उल्टा और सीधा, इधर से पढ़ें उधर से पढ़ें तब भी जो है एक श्लोक बन जाएंगे। गोमूत्रिका बंद है, मुरज बंद है, इस तरह से अनेक चित्रात्मक काव्य जो है लिखने लगे। कहा भी जाने लगा कि भारवी को पछाड़ने के लिए ही माघ ने शिशुपाल वध की रचना की, या इस उक्ति से भी
हम समझ सकते हैं कि तावद भा भारविर्भाति जावन माघस नोदय उदिते नैषधे काव्ये व माघ व च भारवी। कहते हैं कि यहाँ तावद भा भारविर्भाति जावन माघस नोदया, भा चमक, रवि सूर्य, सूर्य की चमक तब तक होती है जब तक माघ महीना नहीं आ जाए, अर्थात जनवरी महीना नहीं आ जाए। दिसंबर जनवरी में माघ महीना हो जाता है। उसी तरह से श्लेष के रूप में कि भारवी कवि की प्रसिद्धि तब तक होती है जब तक कि माघ कवि नहीं उपस्थित हो जाते हैं। फिर कहते हैं उदिते नैषधे काव्ये व माघ व च भारवी। जैसे ही नैषध महाकाव्य आया श्री हर्ष का, कहाँ माघ कहाँ भारवी, सब विलुप्त हो गए और यह हावी हो गए। कहने का मतलब है कि उस समय में एक काव्य की होड़ सी चल पड़ी थी। तो जहां पर काव्य के आत्म तत्व के रूप में या आंतरिक गुण के रूप में रस इत्यादि थे, ठीक बाह्य तत्व के रूप में अलंकार हो गए, तो कुछ बाह्य तत्व को दर्शा रहे हैं, कुछ आंतरिक तत्व को दर्शा रहे हैं। कोई ऐसा तत्व नहीं था जो दोनों को अर्थात आंतरिक और बाह्य दोनों सौंदर्य को दर्शाए। यह कुंतक का सबसे बड़ा योगदान है कि यह भाषा के सबसे छोटी इकाई जो वर्ण होते हैं वहां से लेकर के प्रबंध जो काव्य के एक बड़ा स्वरूप होता है वहां तक के सौंदर्य को इन्होंने दर्शाया। मैं एक एक करके आगे बतलाऊंगा कि जैसे वर्ण विन्यास वक्रता, पद वक्रता, वाक्य वक्रता, प्रकरण वक्रता और प्रबंध वक्रता, 6 भागों में इन्होंने अपने वक्रोक्ति को विभाजित करके काव्य के सौंदर्य, संपूर्ण सौंदर्य की चर्चा की इसमें। और वह उस समय की एक आवश्यकता लग रही थी कि हम देखते हैं कि केवल आंतरिक सौंदर्य ही जरूरी नहीं है, बाह्य सौंदर्य ही चाहिए। केवल बाह्य ही नहीं, आंतरिक सौंदर्य भी चाहिए। तो काव्य के संपूर्ण सौंदर्य की चर्चा वक्रोक्ति सिद्धांत में मिल जाते हैं। अब आता है कि वक्रोक्ति जो यह है, ये किन किन रूपों में काव्य में हमें देखने को मिलते हैं। फिर हम आत्म तत्व पर आते हैं, फिर उसके बाद एक एक भेद पर उदाहरण सहित हम वक्रोक्ति की चर्चा करेंगे। फिर पाश्चात्य साहित्य में भी वक्रोक्ति की क्या स्थिति है उस पर थोड़ी चर्चा करेंगे। तब हम बताएंगे कि इसमें क्या काम हुए हैं, क्या काम हो सकते हैं शोध के क्षेत्र में, और उससे हमें शोध के क्षेत्र में बहुत सारी दिशाएं मिल सकती हैं। संस्कृत काव्य शास्त्र के आलोचना जगत में वक्रोक्ति शब्द अनेक रूपों में प्रचलित रहा है। यह वक्रोक्ति पद एक विशिष्ट अर्थ को धारण करते हुए एक संप्रदाय तथा अनंतर काव्य के जीवित तत्व के रूप में प्रतिष्ठित हुआ, जो वक्रोक्ति के महत्व का परिचायक है। अतः वक्रोक्ति का स्वरूप तथा उसके क्रमिक विकास का विवेचन हमें जानना चाहिए। वक्रोक्ति शब्द वक्र तथा उक्ति इन 2 शब्दों से मिलकर बना है। इसका शाब्दिक अर्थ है टेढ़ी उक्ति या कथन, क्योंकि वक्र का अर्थ टेढ़ा है या बांका तथा उक्ति का अर्थ कथन। इस प्रकार विचित्र और चमत्कारिणी उक्ति को वक्रोक्ति कहते हैं, अथवा शास्त्र तथा लोक व्यवहार से में शब्द और अर्थ द्वारा प्रसिद्ध विलक्षण अपूर्व तथा चमत्कार को उत्पन्न करने वाली उक्ति वक्रोक्ति कहलाती है। यह वक्रोक्ति काव्य में विभिन्न रूपों में प्रचलित है। कहीं यह काव्य तत्व के रूप में, कहीं अलंकार के रूप में और कहीं जीवित तत्व अर्थात आत्मा के रूप में स्थापित है। इसका क्रमिक विकास है कि वक्र तथा वक्रा इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अथर्ववेद में कुटिल अर्थ में मिलता है। महाकवि कालिदास ने भी मेघदूत में वक्रः पंथा का प्रयोग टेढ़ा अर्थ में और टेढ़ा अर्थ में ही किया है। बाणभट्ट ने वक्रोक्ति का प्रयोग कादंबरी में वाक्छल, क्रीड़ालाप तथा परिहास, जल्पित इत्यादि अर्थों में किया है। इसके अतिरिक्त चमत्कार युक्त शैली और वचन विदग्धता आदि अर्थों में भी बाण का वक्रोक्ति प्रयोग दिखाई देता है। बाणभट्ट ने हर्षचरित में वक्रोक्ति का प्रयोग चमत्कार उत्पन्न करने के अर्थ में किया है। हर्षचरित में सावित्री दधीची के संबंध में वे कुक्षी से पूछती है, कौन से वे पुण्यमान अक्षर हैं
जो उनके अर्थात दधीची नाम की सेवा करते हैं, वह कौन सा देश है जो आप लोगों के यहाँ आगमन से अपुण्य रहित होकर वियोग पीड़ा से शून्य कर दिया गया है। यह नाम ग्राम विषयक सामान्य प्रश्नों का विशिष्ट प्रयोग करके बाणभट्ट ने काव्य में अपूर्व चमत्कार उत्पन्न कर दिया है और साधारण कथन की यह शैली ही वक्रोक्ति है। जनरली हम अगर किसी को पूछें कि आप कहाँ से आ रहे हैं, सामान्य बात हो गई, काव्य की भाषा नहीं। इसी को हम कह दें कि किस प्रदेश को विरह में छोड़कर आप आए हैं, अर्थात आप इतने महत्वपूर्ण हैं कि उस जगह को छोड़ने से आप जो है जो वह विरह में हो गए। तो इस तरह से, या ऐसा कौन सा आपका नाम क्या है, ये सामान्य बात हो गई। वक्रोक्ति की भाषा में कहेंगे कौन से ऐसे पुण्यवान नाम है जो आप जैसे महापुरुष धारण करते हैं। तो यही चमत्कार पूर्ण जो बातें हो जाती है, यह वक्रोक्ति कहलाती है। राघव पांडवियम में कविराज ने सुबंधु, बाणभट्ट तथा स्वयं को वक्रोक्ति निपुण कहा है। अमरुक ने भी अमरुक शतक में परिहास कथन के अर्थ में वक्रोक्ति का प्रयोग किया है, जिसमें सापत्यो प्रथम अपराध समये सख्योपदेश देशम विना नो जानाति स्विभ्रमांग वलना वक्रोक्ति संसूचनम, ये उदाहरण वहां आया हुआ है। वक्रोक्ति का काव्य शास्त्रीय प्रयोग सर्वप्रथम भामह ने काव्य अलंकार में किया है। उनके अनुसार शब्द वक्रता तथा अर्थ वक्रता से समन्वित वक्रोक्ति अलंकारों की जननी है, अर्थात वक्राभिधेय शब्दोक्ति या वक्र शब्दार्थोक्ति रूपी वक्रोक्ति के रहने पर ही कोई अलंकार रह सकता है, अन्यथा नहीं। इसी वक्रोक्ति को उन्होंने अतिशयोक्ति भी कहा है, जो लोचनकार के अनुसार काव्य जीवित मानी गई है। अथ सा काव्य जीवितत्वेन तु उक्ता। लोक के सामान्य साधारण कथन का अतिक्रमण करने वाला वचन ही अतिशयोक्ति है। इस अतिशयोक्ति के लोकातिक्रांत गोचरता अर्थात लोकोत्तरता पाई जाती है। इसमें पंडित राज जगन्नाथ के अनुसार लोकोत्तर आह्लाद गोचरता रूपी रमणीयता ही अतिशयोक्ति है। यह अतिशयोक्ति ही वक्रोक्ति है, जिससे अर्थों में चमत्कार आता है। इसे ही अभिनव गुप्त ने रसमयीकरण कहा है। भामह ने हेतु, सूक्ष्म और लेश को अलंकार नहीं माना, क्योंकि उसमें वक्रोक्ति रूपी चमत्कार नहीं होता। वक्रोक्ति के बिना काव्य वार्ता मात्र रह जाता है। गतोस्तमर को भाति इंदुर्याति वासाय पक्षिणः इत्येव मादि किम काव्यम वार्ता में न प्रचक्षते। इस प्रकार भामह के अनुसार काव्य में श्रेष्ठ वस्तुओं का एकत्रीकरण काव्य को श्रेष्ठ नहीं बनाता, अपितु काव्य की शोभा वक्र शब्द और अर्थ से निष्पन्न होती है। उन्होंने अतिशयोक्ति और वक्रता को ही एक ही माना, परंतु क्रमिक विकास के पश्चात वक्रोक्ति का स्वरूप लोकातिक्रांतता से अलग चमत्कार युक्त हो गया। दंडी ने काव्यादर्श में समस्त वाङ्मय को दो भागों में अर्थात वक्रोक्ति और स्वभावोक्ति में विभक्त किया है। उनके अनुसार श्लेष प्रायः सभी वक्रोक्तियों में विद्यमान रहता है। उनके इस काव्य कथन का तात्पर्य है कि काव्य में दो प्रकार की शैलियों का प्रयोग होता था, पहली वक्रता से पूर्ण शैली और दूसरी स्वभावोक्ति शैली। अतः दंडी के मत में साधारण उक्ति से भिन्न चमत्कार पूर्ण उक्ति ही वक्रोक्ति है। कुंतक के परवर्ती आचार्यों ने वक्रोक्ति के भेद के रूप में श्लेष वक्रोक्ति को स्वीकार किया है, जिसका मूल आधार दंडी की वक्रोक्ति ही है। दंडी ने भी वक्रोक्ति और अतिशयोक्ति को पर्याय माना है। उनके अनुसार लोक सीमा का अतिक्रमण करने वाली उक्ति ही अतिशयोक्ति है, जो सभी अलंकारों में सर्वोत्तम अलंकार है। इस प्रकार दंडी ने वक्रोक्ति को व्यापक अर्थ में लेकर उसे अलंकार सामान्य तथा सभी अलंकारों का आधार माना है। वक्रोक्ति को उन्होंने काव्य में अनिवार्य माना है।
आचार्य वामन ने सादृश्य मूलक लक्षणा में वक्रोक्ति अलंकार मानकर इसके क्षेत्र को अत्यंत सीमित कर दिया है। सादृश्याल लक्षणा वक्रोक्ति ही। सूर्योदय होते ही सरोवर में कमल खिल उठे और कुमुदनी बंद हो गई। यहाँ उन्मीलन और निमीलन नेत्र के धर्म हैं जो क्रमशः कमल के विकास और कुमुद के सिमटने को सूचित करते हैं। इसी सादृश्य मूलक लक्षणा को वक्रोक्ति कहते हैं। वामन की इस वक्रोक्ति को परवर्ती आचार्यों ने स्वीकार नहीं किया, क्योंकि वामन के इस लक्षणा में गौणी लक्षणा स्पष्ट नहीं है तथा उसका वक्रोक्ति से किसी प्रकार का संबंध स्थापित नहीं किया जा सकता है। वामन ने वक्रोक्ति को अर्थालंकार माना है। आचार्य रुद्रट ने वक्रोक्ति को वाक्छल पर आश्रित शब्दालंकार मानकर काकु वक्रोक्ति और श्लेष वक्रोक्ति ये दो भेद किए हैं। उन्होंने वक्रोक्ति का अर्थ वक्रीकृतः उक्ति माना है। रुद्रट के परवर्ती कवि उनके वक्रोक्ति विवेचन से प्रभावित प्रतीत होते हैं। हरविजय के रचनाकार ने रुद्रट द्वारा स्वीकृत वक्रोक्ति अलंकार के उदाहरण के रूप में वक्रोक्ति पंचाशिका की रचना की है, जिसमें वक्ता के अभिप्राय की अन्यार्थ में कल्पना करके उसे उत्तर प्रत्युत्तर के रूप में वर्णित किया गया है। अग्नि पुराण में ऋजु और वक्रोक्ति के भेद से दो प्रकार के वाक्य नामक शब्द अलंकार के रूप में वर्णित है तथा काकु और श्लेष भंग श्लेष के भेद से दो प्रकार की वक्रोक्ति मानी गई है। उक्ति प्रतियुक्तिम यद वाक्यम वाको वाक्यम द्विधैव तत् ऋजु वक्रोक्ति भेदेन तत्र आद्यम सहजम वचः वक्रोक्तिस्तु भवेद भंग्या काकुस्तेन कृता द्विधा। यहाँ भी वक्रोक्ति का प्रयोग वाक्छल के रूप में ही किया गया है। मनोरथ कवि के अनुसार वक्रोक्ति अलंकार सामान्य रूप है। ध्वन्यालोक में वक्रोक्ति के संबंध में उनका मत उद्धृत किया गया है, जहाँ वे कहते हैं कि यस्मिन् नस्ति न वस्तु किंचन मनः प्रह्लादी सालंकृति व्युत्पन्नै रचितम च नैव न रचैव वचनैर वक्रोक्ति शून्यम च यत्। उपर्युक्त श्लोक में के वक्रोक्ति शून्यम च यत् इस अंश की व्याख्या करते हुए अभिनव गुप्त ने वक्रोक्ति का अर्थ उत्कृष्ट संघटना किया है। इस तरह वक्रोक्ति शून्य का तात्पर्य है शब्द अर्थ और गुणों की संघटना से शून्य। अन्य आचार्यों ने वक्रोक्ति शून्य शब्द का अर्थ अलंकार सामान्य का अभाव माना है। अतः मनोरथ के अनुसार वक्रोक्ति अलंकार सामान्य ही है। आनंद वर्धन ने ध्वन्यालोक में वक्रोक्ति का नामना निर्देश न करते हुए भी अनेक स्थानों पर वक्रोक्ति तत्व का मार्मिक विवेचन किया है। तत्र वक्रोक्त्यादि वाच्यालंकार व्यवहार। यहाँ वक्रोक्ति शब्द का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। आनंद वर्धन ने भी भामा के समान अतिशयोक्ति को सर्वालंकार रूप में स्वीकार किया है और सभी अलंकारों में अतिशयोक्ति गर्भता को माना है, जिससे काव्य में अपूर्व शोभा की वृद्धि होती है। उन्होंने भी अतिशयोक्ति और वक्रोक्ति में अभेद स्वीकार किया है। भोज ने संपूर्ण वाङ्मय को वक्रोक्ति, रसोक्ति और स्वभावोक्ति इन तीन रूपों में विभक्त किया है। वक्रोक्तिश्च रसोक्तिश्च स्वभावोक्तिश्चेति वाङ्मयम् सर्वासु ग्राहिणी तासु रसोक्ति प्रति जानते। यहाँ भोज ने वाङ्मय शब्द का प्रयोग काव्य के अर्थ में किया है। श्रृंगार प्रकाश में भोज ने वाङ्मय के स्थान पर अलंकार शब्द का प्रयोग किया है। इस प्रकार भोज ने वक्रोक्ति को सभी अलंकारों का मूल तत्व माना है। आचार्य मम्मट वक्रोक्ति को शब्दालंकार विशेष मानते हैं। श्लेष या काकू से अर्थ का अन्य अर्थ लेने के कारण उन्होंने श्लेष वक्रोक्ति और काकू वक्रोक्ति के नाम से वक्रोक्ति के दो भेद किए हैं। इस प्रकार अन्य अभिप्राय से उक्त वाक्य यदि श्लेष या काकू से श्रोता द्वारा अन्यार्थक माना जाए तो वहां वक्रोक्ति अलंकार
होता है। परवर्ती आचार्यों ने वक्रोक्ति को शब्दालंकार के रूप में स्वीकार किया है, जिनमें प्रमुख हैं हेमचंद्र, जयचंद्र, विद्याधर, विद्यानाथ, वाग्भट और विश्वनाथ इत्यादि। रुयक ने वक्रोक्ति को अर्थालंकार के रूप में स्वीकार किया है। वक्रोक्ति संप्रदाय के संस्थापक आचार्य कुंतक हैं, जो हमारे पी.के. माधवन सर भी चर्चा कर चुके हैं। उन्होंने वक्रोक्ति को काव्य जीवित कहा। उनके अनुसार शास्त्रादि में प्रसिद्ध कथन से विलक्षण चमत्कारोत्पादक उक्ति ही वक्रोक्ति है तथा काव्य सौंदर्य के संपादक सभी तत्वों का अंतर्भाव वक्रोक्ति में हो जाता है। यही विचित्र अभिधा रूपी वक्रोक्ति कुंतक के मत में काव्य की आत्मा है। कुंतक ने शब्द और अर्थ को अलंकार मानकर वक्रोक्ति को उनका अलंकार माना है। वैदग्ध भंगी भणिति रूपी वक्रोक्ति ही काव्य का अलंकार या सौंदर्य है। कुंतक ने वक्रोक्ति का व्यापक अर्थ लेते हुए वर्ण विन्यास से लेकर प्रबंध तक वक्रता का क्षेत्र माना है तथा काव्य सौंदर्य के उत्पादक सभी तत्वों को वक्रोक्ति के अंतर्गत समाहित कर लिया है। इस प्रकार वक्रोक्ति के स्वरूप और उसके क्रमिक विकास के विवेचन से यही तथ्य सामने आता है कि वक्रोक्ति के प्रयोग काव्य में अनेक रूपों में किए गए हैं। प्रारंभिक अवस्था में जो वक्रोक्ति पद एक सामान्य काव्य तत्व के रूप में प्रयुक्त होता था, उसने क्रमशः एक अलंकार का रूप धारण कर लिया, जो आगे चलकर आत्म तत्व के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। कतिपय आचार्यों ने इसे शब्दालंकार के रूप में, तो कुछ ने अर्थालंकार के रूप में इसे स्वीकार किया है। इससे भी वक्रोक्ति के व्यापक क्षेत्र का पता चलता है। काव्य के अंतर्गत वक्रोक्ति जिस रूप में भी है, उसकी वह काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है। अब जो कुंतक मानते हैं वक्रोक्ति के स्वरूप को, इस पर थोड़ी चर्चा हम करते हैं कि वक्रोक्ति सिद्धांत भारतीय काव्य शास्त्र का अत्यंत मौलिक और प्रौढ़ काव्य चिंतन है, जिसके प्रवर्तक आचार्य राजाना कुंतक हैं। कुंतक का अपर नाम कुंतल भी है। उन्होंने वक्रोक्ति जीवितम नामक ग्रंथ की रचना कर वक्रोक्ति को काव्य की आत्मा मानकर एक नवीन संप्रदाय की स्थापना की है। कुंतक ने वक्रोक्ति शब्द का प्रयोग व्यापक अर्थ में किया है। यद्यपि वक्रोक्ति का प्रयोग कुंतक से पूर्व काव्य में संकुचित अर्थ में हुआ था, भामा से प्रेरणा प्राप्त कर कुंतक ने उसे एक सिद्धांत तथा आत्म तत्व के रूप में प्रतिष्ठित किया। कुंतक द्वारा वक्रोक्ति की व्यापकता का अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि आनंद वर्धन द्वारा प्रतिपादित ध्वनि के सभी भेद प्रभेदों का तथा साथ ही गुण रीति तथा प्राचीन अलंकारिकों द्वारा निर्दिष्ट सभी अलंकारों का अंतर्भाव इसी वक्रोक्ति में उन्होंने दिखाया है। वस्तुतः इस सिद्धांत की स्थापना तथा इसके संस्थापक ग्रंथ वक्रोक्ति जीवितम की रचना का मुख्य प्रयोजन आचार्य आनंद वर्धन द्वारा प्रतिपादित काव्य आत्मा ध्वनि इस सिद्धांत का खंडन करना तथा वक्रोक्ति में उसका अंतर्भाव करना था। कुंतक का वक्रोक्ति विवेचन बड़ा ही वैज्ञानिक और औचित्यपूर्ण है तथा काव्य की आत्मा का व्यापक अर्थ प्रस्तुत करता है। यद्यपि परवर्ती आचार्यों में वक्रोक्ति संप्रदाय लोकप्रिय नहीं हो सका, तथापि काव्य शास्त्र के लिए यह एक सिद्धांत के रूप में महत्वपूर्ण है। कुंतक के अनुसार वक्रोक्ति काव्य का व्यापक और सार्वभौम संप्रदाय है। वे इसे अलंकार के रूप में वर्णित न कर प्रसिद्ध काव्य चिंतन के पद पर प्रतिष्ठित करते हैं। वक्रोक्ति को स्पष्ट करते हुए कहते हैं, उभाव वेतावलंकार जो तयो पुनरलंकृति वक्रोक्तिरेव वैदग्ध भंगी भणिति रुच्यते। अब इसके विस्तार में मैं नहीं जाऊंगा, मुझे लग रहा कि संकेत हो रहा है। मैं मुख्य विषय पर और आता हूं। जो इन्होंने वक्रोक्ति को स्पष्ट करते हुए कहा है कि शब्द और अर्थ दोनों अलंकार हैं तथा चतुरतापूर्ण शैली में कथन रूपी वक्रोक्ति उनका अलंकार है। यहाँ अलंकार शब्द अनुप्रास उपमा आदि के समान किसी विशेष अलंकार का सूचक नहीं है, अपितु काव्य में विद्यमान काव्य तत्व का सूचक है, जो सर्वत्र अलंकरण में समर्थ हैं।
कुंतक ने वक्रोक्ति को प्रकारांतर से अपूर्व अलंकार कहा है। कुंतक के इस कथन का अभिप्राय यह है कि जो काव्य तत्व किसी कथन में चमत्कार उत्पन्न कर दे वही वक्रोक्ति है, अर्थात लोक वार्ता अथवा लौकिक सामान्य वचन से भिन्न विभिन्न कथन को वक्रोक्ति कहते हैं। कुंतक शब्द और अर्थ दोनों को शरीर मानते हैं। ये दोनों अलंकार जो होते हैं, वक्रोक्ति ही उन दोनों का अलंकार है। वो कुंतक कहते हैं वक्रोक्ति प्रसिद्धा विधान व्यतिरेकिनी विचित्रैवा विधा कीदृशी वैदग्ध भंगी भनीति वैदग्ध्यम विदग्ध भाव कवि कर्म कौशलम तस्य भंगी विच्छिति तया भनीति विचित्रैवा विधा वक्रोक्ति ऋत्युच्यते। इस प्रकार से वक्रोक्ति का उन्होंने बड़ा ही विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। अब मैं इसके भेद पर आता हूं कि इन्होंने जो वक्रोक्ति के भेद किए हैं उसके कुछ उदाहरण हम यहाँ बतलाना चाहेंगे। मैंने पहले ही चर्चा में बताया कि वक्रोक्ति के 6 विधि इन्होंने किया है। ये भेद विस्तार क्रम में वैज्ञानिक पद्धति से किए गए हैं। इनका वक्रोक्ति विभाजन भाषा की लघुत्तम इकाई वर्ण से लेकर इनके महत्तम रूप प्रबंध तक विकसित है। यद्यपि वक्रोक्ति संख्या की विशेषता के आधार पर असंख्य हो सकती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने इसे 6 प्रमुख भेदों में बांटा है, जिसमें वर्ण विन्यास वक्रता, पद पूर्वार्ध वक्रता, पद परार्ध वक्रता, वाक्य वक्रता, प्रकरण वक्रता और प्रबंध वक्रता। इनका वर्ण विन्यास वक्रता है वह एक तरह से जो अनुप्रास अलंकार है या यमक अलंकार है उसी के चमत्कार को इन्होंने वर्ण विन्यास वक्रता के रूप में दिखलाया है, जिसमें एक वर्ण के आवृत्ति के लिए इन्होंने दिखाया है लीला मंथर तारके च नयने यातम विलासलासलम को आप्य एवं हरिणी दृशः स्मर सरापात ताव दातः क्रमः। यहाँ लीला मंथर तारके में लकार और रकार की, नयने यातम में यकार की तथा विलासलासम में लकार और सकार की एक बार आवृत्ति हुई है। अतः यहाँ पर वर्ण विन्यास वक्रता के चमत्कार देखने को मिलते हैं। इसी प्रकार से वर्ण विन्यास वक्रता में जो है एक अक्षर, 2 अक्षर या 3 अक्षर के भी उसमें आवृत्ति को दर्शाया गया है, या यमक अलंकार में जिस प्रकार से आता है, ये सब वर्ण विन्यास वक्रता के अंतर्गत है। अब इसके बाद है पद पूर्वार्ध वक्रता। वर्णों की वक्रता के पश्चात आचार्य कुंतक जो है वर्णों के समुदाय अर्थात पदों की वक्रता को का वर्णन करते हैं, जिसमें पद पूर्वार्ध और पद परार्ध वक्रता को बतलाते हैं। व्याकरण में पद पूर्वार्ध का दूसरा ही नाम प्रकृति भी है। संस्कृत में पद सुबंत और तिगंत को कहते हैं। सुप्तिगंतम पदम, सुबंत का पूर्वार्ध प्रातिपदिक और तिगंत का पूर्वार्ध धातु कहलाता है। संस्कृत व्याकरण के अनुसार पद का अर्थ भी जो है विभक्ति से युक्त शब्द जो वाक्य में प्रयुक्त होता है। तो इस प्रकार से हम जानते हैं कि जिसमें पद का पूर्वार्ध का चमत्कार है वह पद पूर्वार्ध चमत्कार बतलाया इन्होंने। पद पूर्वार्ध वक्रता के भेदों की संख्या के विषय में आधुनिक विद्वानों में अनेक मत प्रचलित हैं। इनके भेदों के उपभेद भी हैं, जिन्हें भेद मानकर संख्या वृद्धि करने का प्रयास कुछ आचार्यों ने किया है। हेमा आत्मनाथन ने इसी को 8 भेद कहा है, कृष्ण कुमार ने 9 भेद कहा है, सत्यदेव चौधरी ने 11 भेद भी स्वीकार किया है, जिसमें कुंतक ने 8 भेद मुख्य रूप से स्वीकार किए हैं पद पूर्वार्ध के। रूढ़ि वैचित्र वक्रता, पर्याय वक्रता, उपचार वक्रता, विशेषण वक्रता, संवृत्ति वक्रता, वृत्ति वैचित्र वक्रता, लिंग वक्रता और क्रिया वैचित्र वक्रता। रूढ़ि वैचित्र वक्रता के बतला रहे हैं इसे कि यह वक्रता रूढ़ि के वैचित्र पर आश्रित है। रूढ़ि से अभिप्राय परंपरागत अथवा कोश तथा लोक व्यवहार में प्रसिद्ध वाच्य अर्थ से है। शब्द के नियत बोधकत्व रूप धर्म को रूढ़ि कहा गया है। इसके उदाहरण के लिए यहाँ बतलाते हैं कि तदा जायन्ते गुणा यदा ते सहृदय गृह्यन्ते रवि किरणानुगृहीतानि भवन्ति कमलानि कमलानि। सहृदयों के द्वारा गृहित होने पर ही कोई गुण गुण कहे जाते हैं,
जैसे कमल सूर्य की किरणों से अनुग्रहित होने पर ही कमल होते हैं। यहाँ कमल शब्द से केवल जलज की विवक्षा नहीं होती, अपितु अलौकिक मंगल और विचित्र रमणीयता का अर्थ अभिप्रेत है। ध्वनिकार इसी को शब्द सकृत वस्तु ध्वनि बतलाते हैं। पर्याय वक्रता। पर्याय वक्रता पर्याय का अर्थी समानार्थी शब्द होता है। पर्याय वक्रता के उदाहरण के रूप में इन्होंने जो वर्णन किया है, रघुवंशम का एक बहुत अच्छा उदाहरण इन्होंने दर्शाया है कि अलम महिपाल तब श्रमेण प्रयुक्तम अप्य वस्त्राभितो वृथा स्यात् न पादपोन मूलन शक्ति रंगः शिलोच्चये मूर्छति मारुतस्य। शंकर के अनुचर सिंह राजा दिलीप से कहते हैं कि हे राजन, इस कार्य के लिए व्यर्थ परिश्रम मत करो, क्योंकि उसके ऊपर चलाया गया आपका अस्त्र व्यर्थ हो जाएगा। वृक्षों को उखाड़ देने की सामर्थ्य रखने वाला आंधी का वेग भी पहाड़ का कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तो राजा के वाचक सैकड़ों शब्द होने पर भी कवि कालिदास ने यहाँ पर महिपाल शब्द का प्रयोग विशेष रूप से किया है। महिपाल शब्द संपूर्ण पृथ्वी के पालन की क्षमता रखता है, किंतु उसी पृथ्वी का पालन करने वाला राजा दिलीप के द्वारा असाधारण प्रयत्नों से भी परिपालनीय गुरु वशिष्ठ की गाय रूपी एक जीव मात्र की रक्षा करना असंभव है। अतः इस महिपाल शब्द से इसी असंभाव्य अर्थ एक गो की रक्षा करने में असमर्थ की अभिव्यक्ति हो रही है। इस प्रकार यहाँ पर महिपाल में पर्याय वक्रता है। उपचार वक्रता इसके बाद आता है। इसमें इसके उदाहरण में दिया हुआ है इन्होंने कि गच्छन्ति नाम रमन वसतिम योषिताम तत्र नक्तम वृद्धा लोके नरपति पथे सूचि भेद्यस्तमोभिः सौदामन्या कनक निकष स्निग्धया दर्शयोर्वीं तोयोत सर्गस स्तनित मुखरो माँ अस्म विकल वास्ताः। यहाँ अमूर्त अंधकार में मूर्त पदार्थ के योग्य सूची भेदन का प्रयोग उपचार से किया गया है। इसी प्रकार सौदामनी बिजली के लिए स्निग्ध विशेषण का प्रयोग भी उपचार वक्रता को दर्शाता है। अब विशेषण वक्रता, जहां विशेषण के प्रभाव से क्रिया अथवा कारक का सौंदर्य चमत्कृत होता है, वहां विशेषण वक्रता है। तो इसके उदाहरण में दिया है सूची शीतल चंद्रिका प्लुत चिरनिह शब्द मनोहरा दिशः प्रशमस्य मनोभवस्य वा हृदि तथाप्यथ हेतुताम ययुः। स्वच्छ और शीतल दिशाएं चांदनी से व्याप्त हैं तथा बहुत देर से निशब्द होने के कारण मनोहर हैं, जो किसी के शब्द हृदय में शांत रस और किसी के हृदय में श्रृंगार रस को उत्पन्न करने वाली है। यहाँ दिशाओं के उक्त विशेषणों से के प्रभाव के कारण ही दोनों रसों की स्थिति संभव हो सकी है। इसी प्रकार से अन्य जो इनके भेद हैं पद पूर्वार्ध के, उसके भी उदाहरण दिए गए हैं। पद परार्ध के भी भेद इन्होंने बतलाए 6 भेद: काल वैचित्र वक्रता, कारक वक्रता, संख्या वक्रता, पुरुष वक्रता, उपग्रह वक्रता और प्रत्यय वक्रता। तो हम केवल एक उदाहरण में काल वैचित्र वक्रता का यहाँ पर चर्चा करेंगे कि शिशुपाल वधम के प्रथम सर्ग में महाकवि माघ ने अनेक स्थलों पर लकारों के सौंदर्य का वर्णन किया है, जिसमें पूरी मव स्कंद लूनी ही नंदनम मुशान रत्नानी हराम रांगना विगृह चक्रे नमुची द्विषा बलि इत्थम स्वास्थ्य हर दिवा। यहाँ पर अव स्कंद लूनी ही मुशान और हर इन प्रयोगों में लोट लकार है, जो क्रिया समाव्यविहार के अर्थ में होने के कारण भूतकाल का बोध करा रहा है। यह माघ का चमत्कारी प्रयोग है। तो इस प्रकार के जो इनके पद परार्ध वक्रता हैं, जिसमें कारक के भी उदाहरण, संख्या वक्रता, पुरुष वक्रता के भी अलग अलग उदाहरण हैं, जो जिससे कि वो वक्रता को अच्छी तरह से दर्शा रहे हैं। इसके बाद आता है वाक्य वक्रता। वाक्य वक्रता का है जो अर्थालंकार होते हैं वो वाक्य वक्रता के अंतर्गत आते हैं। तो इसलिए जैसे
दीपक, रूपक, उपमा इत्यादि अलंकार हैं। इन सबों के उदाहरण इसमें वाक्य वक्रता के रूप में इन्होंने प्रयोग किया है। उसी तरह से प्रकरण वक्रता है। किसी भी प्रबंध का एक देश जो है वह प्रकरण कहलाता है। तो कोई भी काव्य बनता है तो विभिन्न अंगों से जुड़ करके बनता है, तो इसीलिए हर एक अंग सुदृढ़ होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए। इसीलिए हर कथानक को, छोटे छोटे कथानकों को मिलाकर एक काव्य की रचना होती है। तो इसीलिए हर जो उसके अंग हों, उसके एक एक भाग हों, वह भी सुदृढ़ हों, इसी को प्रकरण वक्रता के रूप में इन्होंने दर्शाया है। इसके भी उन्होंने 9 भेद किए हैं। विस्तार के कारण मैं उस पर पूरी चर्चा नहीं करूंगा। जिसमें नाम इन्होंने गिनाया है: पात्र प्रकृति वक्रता, उत्पाद्य कथा वक्रता, उपकार्योपकारक भाव वक्रता, आवृत्ति वक्रता, प्रासंगिक प्रकरण वक्रता, अवांतर वस्तु वक्रता, नाटकांतर्गत नाटक वक्रता, मुख संध्यादि विनियोग विनिवेश वक्रता। इस तरह से इन्होंने इसके 8 भेद किए हैं, 9 भेद किए हैं, और 9 भेद के अंतर्गत उन वक्रताओं को इन्होंने दर्शाया है। इसी प्रकार से आता है प्रबंध वक्रता। प्रबंध वक्रता में इन्होंने जो है मूल रूप से जो पूरा प्रबंध होता है उसमें किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, तो 6 मुख्य रूप से बतलाए हैं इन्होंने। कि मूल रस परिवर्तन, हम देखते हैं कि कथानक जहां से लिया गया उसका कोई रस रहता है, कभी उसको किसी अन्य रस में लेकर के एक काव्य की रचना अच्छी तरह से कर लेते हैं। तो इस तरह से मूल रस परिवर्तन, विशेष प्रकरण पर कथा समाप्ति, कथा विच्छेद, नायक द्वारा अनेक आनुषंगिक फलों की प्राप्ति, प्रधान कथा का द्योतक नाम, कथा साम्य, इन सब विशेषताओं के साथ जो है प्रकरण वक्रता को इन्होंने दर्शाया है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इन जो कुंतक हैं अपने वक्रोक्ति जीवितम में वक्रोक्ति को बहुत ही विस्तार पूर्वक विवेचन किया है। तो इस तरह से वक्रोक्ति जो है काव्य के आत्मा के रूप में इन्होंने स्थापित किया है। अब मैं थोड़ी सी चर्चा करता हूं इसके पाश्चात्य काव्य शास्त्र में किस प्रकार से वक्रोक्ति जो है वह, 1 मिनट, क्षमा करेंगे। हाँ, तो पाश्चात्य काव्य शास्त्र में किस प्रकार से वक्रोक्ति का स्वरूप है उस पर हम अभी चर्चा करते हैं। पाश्चात्य में काव्य शास्त्र भारतीय काव्य शास्त्र के जैसा विस्तृत चिंतन नहीं हुआ है। जिस प्रकार भारतीय काव्य शास्त्र में आचार्य भरत को आद्याचार्य माना जाता है, वाल्मीकि को आदि कवि, ठीक उसी प्रकार से पाश्चात्य काव्य शास्त्र में भी होमर आदि कवि माने जाते हैं। होमर के काव्य में एक ऐसा उद्धरण प्राप्त होता है जिसमें काव्यगत वक्रता की प्रच्छन्न स्वीकृति मिलती है, जिसे बोसांके ने पाश्चात्य कला का प्रथम सूत्र माना है तथा एटकिंस ने कला की माया का प्राथमिक अभिज्ञान कहा है। होमर के समकालीन ही 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व के प्रसिद्ध आचार्य जॉर्जियास, जिनका ग्रंथ तो उपलब्ध नहीं होता परंतु प्राप्त 2 अभिभाषणों में उनके काव्य संबंधी विचारों का परिचय मिलता है, जिसमें उन्होंने भाषा के सौंदर्य पर विशेष बल दिया है तथा गद्य में अलंकारों के प्रयोग को अनुमोदित किया है। अर्थात सामान्य रूप से गद्य में भी कविता के रंग और वैचित्र का समावेश करना चाहिए। इन शब्दों में वक्रता की स्पष्ट स्वीकृति है, क्योंकि रंग और वैचित्र वक्रता के ही पर्याय हैं। परंतु पाश्चात्य काव्य शास्त्र में काव्य की चर्चा सर्वप्रथम ईसा से 4वीं शताब्दी पूर्व एरिस्टोफेनीज द्वारा लिखे नाटक द फ्रॉग्स, मेढक में प्राप्त होती है, जिसमें एस्फाइलस और यूरिपाइडिस नामक नाटककारों के विवाद को प्रस्तुत किया गया है। एस्कैलस वक्रता वैचित्र का पक्षपाती बताया गया है। होमर से लेकर प्लेटो तक वक्रता के विषय में किसी प्रकार का कोई भी विवेचन प्राप्त नहीं होता है। प्लेटो के द्वारा लिखे गए संवादों के आधार पर प्लेटो के काव्य सिद्धांतों का ज्ञान होता है। वह काव्य में कल्पना तत्व का बहिष्कार करता है। इसी प्रकार वह
काव्य में किसी प्रकार की वक्रता को स्वीकार नहीं करते। प्लेटो के बाद अरस्तु ने काव्य में वर्णित विषय के अतिरिक्त उसके होने की संभावना है उसका वर्णन भी स्वीकार किया और वक्रता को काव्य में स्वीकृति प्रदान की। रोमी काव्य शास्त्रियों में लगभग सभी ने औचित्य मूलक गरिमा पर बल दिया। उन्होंने वक्रता का बहिष्कार नहीं किया, वरन यह कहा कि काव्य का प्राण तत्व औचित्य है। वक्रता की छटा विद्यमान होने पर काव्य का आकर्षण और अधिक बढ़ जाता है। सिसरो और होरेस इसी मत का समर्थक था। लोजाइनस ने काव्य में जिस उदात्त तत्व की स्थापना की है वह अभिव्यंजनागत चमत्कार का ही दूसरा नाम है। उसने काव्य में कल्पना तत्व को स्वीकृति देते हुए लाक्षणिक प्रयोगों का महत्व भी स्वीकार किया है। लोंजाइनस के अतिरिक्त अन्य किसी आचार्य ने वक्रता पर अधिक बल नहीं दिया है। दांते ने युग में रीतिबद्ध लैटिन के विरुद्ध उज्ज्वल जनवादी और इटालियन के महत्व को स्वीकार किया। दांते के विवेचन का ढंग शास्त्रीय नहीं है, परंतु उसने अपने विवेचन में वर्ण विन्यास वक्रता आदि को वक्रोक्ति का भेद मानकर विवेचन किया है। 17वीं 18वीं शताब्दी में एडिशन वक्रता का सबसे बड़ा समर्थक माना जा सकता है। उसके बाद उनके अनुसार कोई भी सादृश्य अथवा साम्य वर्णन तभी चमत्कार के अंतर्गत आ सकता है जब सामान्य तत्व अपने प्रकट रूप में एक दूसरे से बहुत निकट न हो, क्योंकि जहां साम्य सर्वथा स्पष्ट है वहां विस्मय की उद्बुद्धि नहीं होती। वह काव्य में एक ऐसी संगति की अन्वेषणा पर बल देता है जो पाठक के मन में विस्मय जगा सके। वह काव्य में भव्यता के गुण के पक्षपाती हैं। 18वीं सदी के अंत में यंग ने काव्य में सामान्य मार्ग के त्याग और वैचित्र वक्रता का ग्रहण का अनुमोदन किया है। इसी सदी के जर्मन आलोचक लैसिंग ने वक्रता के तत्व का सूक्ष्म और वैज्ञानिक विवेचन प्रस्तुत किया है। उसने चित्रकला की अपेक्षा काव्य कला को वक्रता के आधार पर ही श्रेष्ठ ठहराया है। इसी शताब्दी के विद्वान शीलर ने भी भावपरक वैचित्र वक्रता पर जोर दिया है। स्वच्छंदतावादी युग के प्रसिद्ध कवि वर्ड्सवर्थ गद्य और कविता की भाषा में कोई अंतर नहीं मानते। वे काव्य में वक्रता के विरोधी नहीं अपितु वक्रता विलास के विरोधी माने जाते हैं। वर्ड्सवर्थ काव्य में जन सामान्य की भाषा से अलग एक विलक्षणता का समर्थन करते थे जिसे कुंतक वक्रोक्ति की संज्ञा देते हैं। उन्होंने कृत्रिमता का विरोध किया था और इसके विरोध में वे कुछ अतिवादी बातें कह गए हैं। कॉलरिज ने वर्ड्सवर्थ ने इस अतिवाद का तीव्र विरोध किया था तथा गद्य और कविता की भाषा में तात्विक अंतर माना। भारतीय काव्यशास्त्र में हमें स्वभावोक्तिवादी और वक्रोक्तिवादी दो धाराएं स्पष्ट दिखाई देती है। पाश्चात्य काव्यशास्त्र में भी स्पष्टतया ये दिखाई देता है। 20वीं शताब्दी में इंग्लैंड में EMW टिलियर्ड्स ने अपनी पुस्तक पोएट्री डायरेक्ट एंड ऑब्लिक में काव्य के लिए वक्रता को अनिवार्य तत्व माना है। उनका कथन है कि कोई भी काव्य शास्त्र वक्रता विहीन नहीं हो सकता। काव्य अनिवार्यतः वक्र होता है। काव्य में वक्रता के स्तर तो हो सकते हैं, परंतु कोई भी काव्य वक्रता विहीन नहीं हो सकता। उसने कुंतक के तरह ही वक्रता के उपकरणों की विस्तृत व्याख्या की है। इसका विस्तृत विवेचन डॉक्टर मथुरेश नंदन कुलश्रेष्ठ की पुस्तक टिलियर्ड्स का वक्रोक्ति सिद्धांत में भी किया गया है। 20वीं शताब्दी में विकसित नई समीक्षा और शैली विज्ञान काव्य में वक्र प्रयोगों का ही आख्यान है। विलियम एम्सन ने अपनी पुस्तक 7 टाइप्स ऑफ एम्बिग्विटीज में एम्बिग्विटी के प्रथम 3 प्रकारों में इन वक्र प्रयोगों का ही विस्तृत आख्यान किया है। इस प्रकार क्लिंथ बुक्स ने अपनी पुस्तक द वेल रॉट अर्न में इस बात की स्थापना की है कि काव्य भाषा अनिवार्यता विरोधाभास की भाषा होती है। नई समीक्षा काव्य के पाठ विधि और शब्द विधान पर अत्यधिक बल देता है। उसके बाद है
एलेन टेट ने जिस तनाव सिद्धांत की स्थापना की है वह सिद्धांत रूप में इस बात को स्वीकार करके चलता है कि काव्य भाषा आंतरिक तनाव के साथ बाह्य तनाव के संतुलन का नाम है। तनाव का यह संतुलन भाषा को अनिवार्यता वक्रता प्रदान करता है। उनका संपूर्ण विवेचन वक्रता का ही आख्यान है। यद्यपि वक्रोक्ति काव्य का अत्यधिक महत्वपूर्ण तत्व है, परंतु कुछ विशिष्ट प्रकार के अलंकृत काव्य में इसका सौंदर्य बहुत स्पष्ट और आकर्षक होता है। इसलिए वक्रोक्ति को एक व्यापक अलंकार के रूप में भी प्रतिष्ठित किया जाता है। पाश्चात्य काव्य शास्त्र में इसका विवेचन अनेक रूपों में हुआ है। जैसे आयरनी और विट दो ऐसे पारिभाषिक शब्द हैं जो व्यापक रूप में वक्रोक्ति के सौंदर्य को समाहार करते हैं। यद्यपि भारतीय काव्यशास्त्र में जिसे वक्रोक्ति अलंकार कहा गया है, पश्चिम में ठीक वैसा ही कोई अलंकार नहीं है, परंतु विट और आयरनी की प्रकृति वक्रोक्ति से युक्त है और पश्चिम में इसकी व्यापकता उतनी ही है जितना कि वक्रोक्ति की। वक्रोक्ति अलंकार का निकटतम अंग्रेजी शब्द एंटीफ्रेसिस है, जिसमें श्रोता वक्ता के शब्दों का वक्ता को अभीष्ट अर्थ से उल्टा अर्थ ग्रहण करता है। वहां इस अलंकार में श्लेष और काकु प्रयोग की कोई चर्चा नहीं है। भारतीय काव्यशास्त्र में वक्रोक्ति अलंकार के दो रूपों में विभक्त किया गया है, श्लेष वक्रोक्ति और काकु वक्रोक्ति। काकु वक्रोक्ति बहुत कुछ वर्बल आयरनी के क्षेत्र की चीज है। श्लेष वक्रोक्ति का निकटतम पर्याय पश्चिम में एंटीफ्रेसिस है, जहां कहने वाले व्यक्ति का जो तात्पर्य होता है श्रोता उससे भिन्न ही किसी अर्थ को ग्रहण करता है, वहां एंटीफ्रेसिस अलंकार होता है। अब आयरनी जो है किसी बात को सीधे ढंग से न कहकर उक्त गर्भत्व के द्वारा कहा जाना ही आयरनी है, जो वहां पर वक्रोक्ति के रूप में पाया जाता है। आयरनी एक प्रकार की वक्रोक्ति व्यंग या विद्रूप है, जिसमें रचिता का या वक्ता की वाग भंगी या रचना भंगी प्रदर्शित होती है। अंग्रेजी में आयरनी ऐसे वक्तव्य को कहते हैं जिसमें वास्तविक अर्थ अभिधेयार्थ से ठीक उल्टा होता है। भाषण शास्त्र में इसको आयरनी कहा जाता है। इसके बाद आता है वाग वैदग्ध, जिसको विट भी कहते हैं, उसी का हिंदी में वाग वैदग्ध कहा गया है। विट का अर्थ है बुद्धि। विदग्धता या विट में किसी परिचित शब्द के अर्थ को अनपेक्षित रूप में रखकर उसके द्वारा भिन्न अर्थ की व्यंजना कराई जाती है। इस प्रकार के कथन से न तो किसी को क्षति पहुंचती है और न ही किसी पर दोषारोपण किया जाता है। विदग्धता में हास का स्वरूप भी मिल जाता है, जिसकी सीमा अस्मित तक ही होती है। इसमें उपहास की कटु स्थिति नहीं होती है, सत्य और प्रौढ़ अर्थ का सन्निवेश होता है। कभी कभी सरल उक्तियों में भी बिट भरा रहता है। तो इस तरह से बिट का जो है शाब्दिक अर्थ चतुराई शब्द वहां बतलाया गया है। तो बिट के रूप में आता है। इन्यूंडो के रूप में प्रयोग होता है वक्रोक्ति का, वहां पर जहां पर वक्रोक्ति व्यंग या व्यंग भाषण एक प्रकार का अलंकार है। पाश्चात्य में काव्यशास्त्र में जब सुखात्मक या दुखात्मक वृत्तियों को व्यक्त करने के लिए वक्ता अपने वक्तव्य को सरल ढंग से न कहकर व्यंजक ढंग से कहे, यह एक प्रकार का व्यंग या कटाक्ष है जो प्रत्यक्ष न होकर अप्रत्यक्ष होता है और श्रोता को उतना बुरा नहीं लगता है। जैसे उनका जन्म धनी किंतु ईमानदार व्यक्ति के यहाँ हुआ है। ये उदाहरण है कि उनका जन्म धनी किंतु ईमानदार व्यक्ति के यहाँ हुआ है। यहाँ किंतु शब्द इस तथ्य का द्योतक है कि धनी लोग ईमानदार नहीं होते हैं। इस अलंकार का प्रयोग निंदा के ही अर्थ या प्रसंग में होता है, किंतु निंदा को स्पष्ट ढंग से व्यक्त न कर गूढ़ ढंग से व्यक्त किया जाता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि पाश्चात्य काव्य शास्त्र में भी इन्यूंडो, आयरनी, वीट इत्यादि के रूप में पाश्चात्य काव्य शास्त्र में वक्रोक्ति के स्वरूप हमें देखने को मिलते हैं। अब हम आते हैं कि वक्रोक्ति के शोध के क्षेत्र में क्या इसके अवसर हो सकते हैं। तो जब मैं दिल्ली विश्वविद्यालय से शोध कार्य कर रहा था, तो शोध कार्य के समय में जब मैं देखा तो दिल्ली विश्वविद्यालय में वक्रोक्ति पर एक भी काम मुझसे पूर्व नहीं हुआ था। मैं जब देखा तो
लगभग रस पे, अलंकार पे बहुत सारे हुए हैं, ध्वनि पे बहुत सारे काम थे। वक्रोक्ति पर एक भी काम दिल्ली विश्वविद्यालय में नहीं मिला मुझे। लाल बहादुर विद्यापीठ में एक मिला था, जो लघुत्रयी का वक्रोक्ति की दृष्टि से समीक्षात्मक अध्ययन ओमनाथ डिमरी के जी ने किया था, ओम प्रकाश डिमरी जी ने उस पर काम किया था। फिर लखनऊ में भी मैं देखा तो पूरे यूनिवर्सिटी में एक काम मिला था, भवभूति का पद वक्रता, इतने मिले थे हमको, उसके बाद नहीं मिल पाए थे। तो उसके बाद जब काम किया तो माघ में वक्रोक्ति मेरा यह विषय था। ये आप देख सकते हैं, ये पुस्तक सभी जगह उपलब्ध है, और ये यहाँ पर विद्यानिधि प्रकाशन से छपी, और बाकी और भी पुस्तक भंडार पर मिल जाएंगे। तो माघ में वक्रोक्ति में मैंने वक्रोक्ति को अच्छी तरह से दर्शाया है। तो मेरे इस शोध कार्य के बाद मेरे ही अंडर में 3 काम हो चुके हैं वक्रोक्ति पर। एक तो इस पर हुआ है, उत्तर ये नैषधीय चरितम का वक्रोक्ति की दृष्टि से हो चुका है। इसी तरह से मुद्रा राक्षस पर हुआ है दिल्ली विश्वविद्यालय से, अन्य भी शिशुपाल वधम पे वक्रोक्ति से हुआ ही है। तो अन्य भी जो ग्रंथ हैं उन ग्रंथों को लेकर वक्रोक्ति की दृष्टि से शोध कार्य किए जा सकते हैं। उसी तरह से पाश्चात्य में जिस प्रकार से वक्रोक्ति का स्वरूप है उस पर भी शोध कार्य हो सकते हैं। तो इस तरह से जो वक्रोक्ति एक सिद्धांत है, इसको लेकर विभिन्न क्षेत्र में जितने भी अब तक शोध कार्य हुए हैं उसको देखा जा सकता है। उसके आधार पर अन्य ग्रंथों में वक्रोक्ति सिद्धांत के आधार पर शोध कार्य किए जा सकते हैं। इसमें बहुत सारी संभावनाएं हैं, बहुत सारे अवसर हैं जिस पर कि हम इसको समझ करके वक्रोक्ति को और उसके आधार पर शोध कार्य करें। जब भी काव्य शास्त्रीय विवेचन होता है किसी भी ग्रंथ का, तो उसमें वक्रोक्ति सिद्धांत एक आते ही हैं। तो वक्रोक्ति सिद्धांत की दृष्टि से वहां पर विवेचन किया जाता है, और केवल वक्रोक्ति को ही लेकर के अन्य ग्रंथों की भी जो है ग्रंथों की को शोध कार्य के लिए लिया जा सकता है और उस पर शोध कार्य किया जा सकता है। तो मैं अब यहीं पर अपने वक्तव्य को विराम देता हूं, और कोई सवाल हो, क्वेश्चन हो तो आप जिज्ञासा कर सकते हैं। आपने मुझे समय दिया, मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। विशेषकर आज मुझे सानिध्य मिला पीके माधवन जी का, तो मैं बड़ा नमन करता हूं। बड़े ही सौम्य व्यक्तित्व के धनी हैं और भाषा भी इतनी ही परिनिष्ठित, मुझे बड़ा अच्छा लगा। और मुखर्जी, जो अनंत मुखर्जी लगातार मेरे संपर्क में रहकर सूचना देते रहते थे, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ। ये मैडम हैं सुतापा मैडम, इनको भी धन्यवाद देता हूँ जिनके सौजन्य से ये कार्यक्रम हो रहे हैं। और जितने लोग इसमें जुड़े हुए हैं अभी, मैं सबों को धन्यवाद देता हूँ इस व्याख्यान को सुनने के लिए, समय देने के लिए। नमस्कार सभी को, साधुवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद आचार्य जी। आपका व्याख्यान शोध छात्रों के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगा। निश्चित रूप से हमें प्रयास किया, एक लघु प्रयास था मेरा। मैं प्रौढ़ में नहीं गया क्योंकि बताए थे कि इसमें शोध छात्र बहुत अधिक रहेंगे और उनको संस्कृत में बोलेंगे तो समझने में दिक्कत आएगी, तो इसलिए आप हिंदी में सरल भाषा में करें। तो मैं कोशिश किया था कि सरल भाषा में और सीमित जो उनके पास तक पहुंच सकी बात पहुंच जाए, तो उतनी ही मैं कोशिश किया था इसमें। अच्छा किया आपने। प्रायः सभी विषय आया, सभी विषयों का प्रतिपादन किया, सभी बिंदु आए। अच्छा, धन्यवाद धन्यवाद, साधुवाद। नमस्कार 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 नमस्कार। हाँ, कोई प्रश्न हो तो आप आमंत्रित करें। जी संचालक महोदय, देखिए, और आगे कुछ प्रश्तव्य हो या कोई जिज्ञासा हो तो आप आमंत्रित करें।
हमारा इस सत्र का अभी प्रश्नोत्तर पर्व है। कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरि ओम महोदय। नमो आं नमो नमः। मम नमो एकः नमो। प्रश्नः अस्ति। वदतु। महाकवेः कालिदासस्य काव्ये वक्रोक्तिः इति विषये शोधकार्यं पूर्वम् अभवत् वा? न इदानीं पर्यन्तं तु न दृष्टमस्ति। कर्तुं आम् शक्यते। आम् आम् न अभवत् अस्ति। केवलं तद् लघुत्रयी दृशा अभवत् अस्ति। लघुत्रयी यथा मेघदूतम् अस्ति। आम्। लघुत्रयी मध्ये अस्ति न लघु किं किम् अस्ति लघुत्रयी मध्ये वदतु। कुमार सम्यक्। संभव, रघुवंशं, मेघदूतं त्रयमपि अस्ति। तद् आधारीकृत्य अभवत् अस्ति। लाल बहादुर विद्याश्री लाल बहादुर विद्यापीठतः अभवत् अस्ति। ओम प्रकाश डिमरी महोदय कृतवान्। आम् हाँ, धन्यवादाः पृथक् रूपेण अपि महोदय। कर्तुं शक्यते। यथा अस्ति एकं पुस्तकम् आधारीकृत्य कर्तुं शक्यते पृथक् रूपेण अपि। आम् आम् अस्तु, धन्यवादाः महोदयः। हाँ, स्वागतम्। और किसी का क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। शायद नहीं है तो सभी को सादर नमस्कार। हमारे और BSSEI सर्च टू रिसर्च के समग्र परिवार के पक्ष से आज का सत्र सच में ही हम सबके लिए सुंदर, मनोरंजक और अनुसंधानरत छात्र छात्रियों के लिए एक नई दिशा का बुलावा है। सच में ही संस्कृत साहित्य में वक्रोक्ति का एक महत्वपूर्ण योगदान है। संस्कृत साहित्य में यहाँ एक नई दिशा दिखाने वाले संरचना थी संस्कृत साहित्यकारों के द्वारा, और उसमें भी वक्रोक्ति काव्य और रचनाओं के विषयों में जो चर्चा हुई, यही सच में ही प्राचीन भारत की सभ्यता, सांस्कृतिक समृद्धि और सांस्कृतिक चर्चाओं का झलक था। आज के इस सत्र में हम सब जान चुके संस्कृत में रचे गए वक्रोक्ति काव्यों के नाम और परिचय के बारे में। यहाँ हम सबके लिए एक सामग्रिक ग्रंथ सूची की भांति हो गई, जिससे हम सब इनमें से कोई एक या दो वक्रोक्ति काव्यों के ऊपर समीक्षात्मक तथा तुलनात्मक शोध कार्य कर सकता है। आज के इस सत्र में हम सबके साथ हम सबको मार्ग प्रदर्शन के लिए उपस्थित थे जामिया मिलिया इस्लामिया के संस्कृत विभाग के श्रद्धेय वरिष्ठ अध्यापक, विशिष्ट गवेषक तथा साहित्य पारंगत अध्यापक श्रीमान जयप्रकाश नारायण जी। मैं समग्र संस्कृति सर्च टू रिसर्च के पक्ष से कोटि कोटि नमन, आंतरिक श्रद्धा और विनम्र कृतज्ञता ज्ञापित कर रहा हूं। आपके मार्ग प्रदर्शन से अवश्य ही यहाँ उपस्थित सभी श्रोता श्रोत्रियों की गवेषणा में एक नई रोशनी लाएगी। यहाँ बोलना अत्युक्ति नहीं होगी। इसके साथ आज के इस सत्र में उपस्थित थे विदग्ध अध्यापक तथा विश्व संस्कृत प्रतिष्ठान के अध्यक्ष, वेद गुरुकुलम के कुलपति PK माधवन जी महोदय को हम सबके तरफ से भावपूर्ण श्रद्धांजलि। उपस्थित लेडी ब्रोवन कॉलेज के संस्कृत विभाग के प्रमुख डॉक्टर सुतपा राय मैम को भी नमस्कार, हम सबके साथ रहकर मार्ग प्रदर्शन करने के लिए। तो अभी शांति मंत्र से इजाजत चाहूंगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्।
श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। शांति मंत्र से आज का सत्र यहीं पर समाप्त करता हूँ। सबको लीव करने के लिए अनुरोध है।